Hello students, I am Rajni Gehlot, PGT English from Bhaurav Devra Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to tell you the theme of the chapter Wizard. Should Wizard Eat Mommy? Which has been taken from the book Vistas. Okay, today I will tell you only the theme of this chapter in this video. Okay, what is the theme of this video? The story deals with the certain moral issues and the adult complexes that clash with childish innocence. Father Jack tells stories to his daughter influenced by his own childhood experiences, failures and complexes. ये जो स्टोरी है शुड विजार्ड इट मॉमी, इसमें इन फादर इज टेलिंग द स्टोरी टू हिज डॉटर who is 4 years old at present, but he started to tell her story at the age of 2 years. When she was 2 years, this custom was started at that time. The story deals with certain moral, इसमें certain moral issues हैं and the adult complexes, और adult के जो complex होते हैं या clash with childish innocence. जो छोटा बच्चा होता है innocent होता है, he or she doesn't know what is right and what is wrong. So to aware with the truthness of the life, the father is trying to convince his daughter with the story. He made a story with his mind. He didn't read anywhere or he didn't find out the story from any movie or cartoon, etc. He make himself. So Father Jack tells stories to his daughter Joe, influenced by his own childhood experiences. The name of the father is Jack and his daughter name is Joe. He told stories to his daughter Joe and influenced by his own childhood. अपने ही childhood से influence होकर वो उसको story सुनाता है अपनी लाइफ की, अपनी चाइल्डहुड में उसके जो फेलियर्स थे, जो एक्सपीरियंसेस थे और कॉम्प्लेक्सेस थे, उनके बेस पर वो उसको कहानी सुनाता है. अपने बचपन की जो उसकी ह्यूमिलेशंस थी उन सबको फील करता है व्हेन ही टोल्ड स्टोरी टू हिज डॉटर. ऑन द अदर हैंड हिज डॉटर लिव्स इन हर ओन वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी. As you know, small child doesn't know right and wrong. They live in their fantasy world. वो अपने ही fantasy world में रहते हैं जो daughter है उसकी, and doesn't want to come out of it, and she doesn't want to come out of that fantasy world. She feels the pain of being rejected by the playmates when Roger Skunk is rejected due to his bad smell. In the story of Jack, there is the pain of rejection in that story, but his daughter is not ready to accept that rejection. He was trying to tell her the truthness of the life, that the child is liked by his or her friends or mother in his real position, not in fake condition or fake position. So there is a story of a small creature and who smelled very bad. Okay, so and rejected due to his bad, and that's why he is not accepted by anyone due to his bad smell. The story highlights the point that the children also have their egos, identities. इस स्टोरी में जो बताया जा रहा है, जो मेन चीज़ पर हाईलाइट्स दिया जा रहा है वो ये है, पॉइंट से बताए गए हैं कि बच्चों की भी अपनी इगोज होती हैं, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, व्यूज़ एंड एटीट्यूड ना होता है. आप भी हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को, अपने ही बच्चों को, छोटे से बच्चे को जो कि अभी 4 या 5 साल का भी है, अगर हमने उसको किसी के सामने डांट दिया तो ही फेल्ट ह्यूमिलिएशन. जबकि हमारे टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता था, पेरेंट्स डांट देते थे, परिवार का कोई भी मेंबर डांट देता था तो हम लोगों को इतना बुरा महसूस नहीं होता था. पर आज की जनरेशन में छोटे छोटे बच्चों को ह्यूमिलेशन फील होती है, उनका एक एटीट्यूड होता है, अपने व्यूज़ होते हैं विच दे वॉन्ट टू एक्सप्रेस बिफोर अस. द एंडिंग ऑफ द स्टोरी हाईलाइट्स द फैक्ट that the children must understand
that one must accept one's identity and gracefully accept the way we are created by God. इस स्टोरी की जो एंडिंग है हाईलाइट्स द फैक्ट, वो वास्तविकता पर हाईलाइट करती है, ऊपर पर प्रकाश डालती है, लाइट डालती है कि चिल्ड्रन को समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की पहचान, वो जैसा भी है, जिस भी तरीके का है, उसकी एक अपनी पहचान होती है एंड उसको उसे ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। द वे वी आर क्रिएटेड बाय गॉड, जिस तरीके से हमें गॉड ने बनाया है, वी कैन नॉट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्मॉल इन हाइट, बट we should not feel humiliation for this, and I cannot change myself, I cannot increase my height. Artificially I can increase it by wearing footwears of high heel, but this is not natural, as a fake and artificial. So everybody have to accept me in my real position, and I cannot create my artificial height. Okay, so the father is trying to tell his child, his daughter, that we should accept the way in we are created by God. भगवान ने हमें जैसा बनाया है, हमें उसी से संतुष्ट होना चाहिए, उसी को स्वीकार करना चाहिए। वी शुड नॉट ट्राई टू मेक आवरसेल्फ फेक। हमें अपने आप को कुछ नकली बनाने की कोशिश, किसी चीज़ की नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये अपने ऊपर आर्टिफिशियलिटी, बनावट नहीं लानी चाहिए। ठीक है, तो हम आगे की स्टोरी में, अब जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आई विल टेल यू अबाउट द मेन कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। Good morning students, I am Rajni Gehlot from Bhaurav Devras Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to continue my chapter Should Wizard Hit Mommy from the book Vistas, and this is for the class 12th. So in this video I will discuss about the character sketches of this chapter Should Wizard Hit Mommy. The first character is Jo. Jo is a small girl of this story. She is the main character of this story. Is Jack's daughter. Jack is the father of Jo. Okay, she is the daughter of Jack, who is 4 years old, and she is 4 years old and is just starting to think critically. Every Saturday night her father tells her a bedtime story, and this has been a custom to tell her a story on Saturday. Okay, and she has a critically mind. She always created different types of question during the storytelling. She is vocal about her feelings during the story and tells her father if there is something she doesn't like and if she wants him to change something. Means she tells her feelings to her father that she wants some changes in the story according to her desire. And Jo has a brother named Bobby, and she had also a brother of 2 years whose name is Bobby. So this was the character of Jo. Next is, and you can see the picture of Jo. Now next character is Jack. Jack is the father of Jo, and Bobby is the son of Jack. Okay, who is 2 years old, and he is married to Jo's mother Claire, and is married with Claire. Claire is the name of his wife, who is 6 months pregnant with their third child. Jack has been telling Jo a bedtime story every Saturday night since Jo was 2 years old, and he was telling her story when she was 2 years old. जब वो 2 साल की थी तब से ये कहानी उसको सैटरडे नाइट को सुनाता आ रहा है। जैक डजंट लाइक व्हेन फीमेल्स डज नॉट लिसन और ट्राई ऑपोजिंग हिम। जैक ये बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि फीमेल्स जो हैं वो डजंट लिसन, वो ना तो सुनती हैं और ट्राई अपोजिंग हिम, और ना ही उसका अपोज करती हैं। सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ जैक and this is the picture of Jo, and this one is the wizard. This is the next character sketch of this chapter. Now other one is the main character of the story, which is told by Jack. Roger is skunk. This story in the story of Jack,
there is a small creature whose name is Roger Skunk. Roger Skunk looks like this. Okay, this is the picture of Roger Skunk. Roger Skunk is a fictional character. This is an imagination, एक काल्पनिक करेक्टर है, मेड फ्रॉम जैक्स माइंड, जो कि जैक के माइंड की क्रिएशन है. दिस इज द क्रिएशन ऑफ जैक्स माइंड. द स्कंक डजेंट स्मेल नाइस, ही स्मेल्स वेरी बैड. स्कंक में से बहुत ही गंदी स्मेल आती है. एंड हिज फ्रेंड्स डोंट लाइक दैट. एंड फ्रेंड्स ऑफ द स्कंक don't like that bad smell. He goes to the owl for help and the wizard changes his smell. And to change his smell, he went to the wise old owl to solve the problem. He went to the owl. Okay, वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए वाइज आउल के पास जाता है, who was very old. Now next character is Claire. Though there is a minor character, a minor role of Claire in this story, but she is the mother of Joe and Bobby, and she is the wife of Mr. Jack. She is 6 months pregnant with Jack's third child. Even though she shouldn't be doing manual labor, she is painting the walls of their house. She shouldn't do it though, because she was pregnant, so she should not do that work which she was doing in this story. What is she doing? She is painting the walls of their houses. अपने घर की वो walls को painting करे, which was not good for her. And in the stage of 6 months pregnancy, Jack is supposed to come help to her when she is doing tucking in and telling his daughter her bedtime story. And when she was doing her work, Jack wanted to help her at this time, but he was telling the story of his daughter, because this was his duty also to take care of his child or his children. Though he does not end up helping her as he is both tired and fed up. Though he does not end up helping her, और वो उसकी हेल्प भी नहीं कर पाता, because he and she both have become tired and have become fed up with his life, with his routine of life on Saturday. Next one is Wizard. Wizard is the next character sketch of this chapter. Wizard means जादूगर. I had already seen the picture of Wizard in the last slide. The wizard is, you can see the picture of wizard. This is a wizard. He looks like this picture in this story. He is small in height and has a long beard and a magic wand in his hand and a long hat on his head. So this is a wizard. Wizard is the character in Jack's stories. He always remains in the stories of Jack's creation. Okay, who usually presents the solution to whatever problem Roger is facing. Means he solve all the problems of the characters of the stories which had been told by Jack to Joe. He does this by performing a magic spell that reverses Roger's predicament, making Roger very happy. और वो ये कैसे करता था? He spells some magic words and remove the problem of that creature, and then they become happy. They become very happy. In the story of Roger Skunk, however, the wizard is the antagonist, changing Roger's scent against the wishes of Roger's mother. लेकिन in this story there is some changes rather than other stories told by Jack. What is the change? That he changed the good smell of the Roger Skunk in bad smell again. So this was the change. Why he changed his smell?
बिकॉज हिज मदर डजेंट लाइक इट एट ऑल. उसकी माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसके बर्थडे में कोई आर्टिफिशियल स्मेल आए. So and therefore altering one of the Rogers initiate biological traits, the wizard also proves a device characters for Jack and Joe. So wizard is the main character of the story of Jack and Joe. Joe also know that if any animal has a problem, then he can go to the owl and wizard to find out the solution of its problem. Now other minor characters of this chapter, the owl. A character in the classic Roger story, the owl always listens to Roger's initial predicaments means problems, and suggests that he go see the wizard so that the wizard can perform a spell to solve the problem. And when then Roger went to the owl, and the owl sent him to the wizard to find out the solution of the problem with the magic words of the wizard. आउल क्या करता था? आउल उसको सजेस्ट करता था कि वो विजार्ड के पास जाए. जो भी रोजर जाता था, रोजर एनिमल, द नेम ऑफ ऑल कैरेक्टर्स आर रोजर. ओके, सो व्हेन दे वेंट टू द आउल, ही सेंट देम टू द विजार्ड. ओके, और विजार्ड क्या करता था? कुछ मैजिक वर्ड स्पेल करता था, बोलता था और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता था. Another one is Bobby. There is a minor role of Bobby in this chapter. Jack's 2 years old son, and Bobby remains asleep for the duration of Roger Skunk's story. सिर्फ वो रोजर स्कंक की जब स्टोरी सुना रहे होते हैं तो उस में एक जगह उसका सीन आता है कि he was sleeping on the bed of Joe. So these were the character sketches of the story Should Wizard Hit Mommy. So in the next video I'll tell you the summary of this chapter. Thank you students. Stay home, safe home. Good morning students. I'm Rajni Galot from BDSVM Noida PGT English. Okay, so I'm going to continue the chapter Should Wizard Hit Mommy. Today I'll tell you the summary of this chapter. What is the summary of this chapter? The story begins when Jack is telling stories to his 4-year-old daughter Jo to put her to sleep on Saturday evening. The story कहाँ से शुरू होती है? When Jack was going to tell the story to his daughter, whose name was Jo, and she was 4 years old. And he told her story every Saturday evenings to make her sleep. All these stories are made up by him. All the stories which were told by Jack to Joe were the creation of Jack's mind. वो Jack's की mind की ही creation थी. And the theme of the stories remains same. सभी stories की जो theme होती थी वो same रहती थी. And the characters भी name भी same होता था, सिर्फ characters change हो जाते थे. This started, what was the theme of the story? This started 2 years ago, sorry. और ये जो कस्टम था कहानी सुनाने का 2 साल पहले से शुरू हुआ था. मीन्स जब जो 2 साल की थी तब से, मतलब उसे हर सैटरडे जैक स्टोरी सुनाकर सुनाता था. एवरी स्टोरी इज़ अ वेरिएशन ऑफ द सेम टेल. और हर कहानी में जो वेरिएशन होती थी बहुत ही, मतलब सेम ही होती थी, बहुत कम वेरिएशन होती थी, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस होता था, बाकी स्टोरी सेम रहती थी. एंड इट स्टार्ट्स, कहानी क्या होती थी? ये शुरू किससे होती थी? विद द सेम रोजर एनिमल से. यानी कोई एक एनिमल चूज़ कर लिया जाता था जैक के द्वारा और उसका नाम रखा जाता था रोजर. जैसे रोजर फिश, रोजर विजार्ड. ओके, एनीथिंग एल्स मीन्स नेम रिमेन्स द रोजर. हमेशा नेम क्या रहता था? रोजर. ही वुड गो, और वो जो रोजर होता था, जो एनिमल होता था, कहाँ जाता था? ही वुड गो टू द वाइज आउल टू गेट द प्रॉब्लम सॉल्व. वो एक वाइज आउल के पास जाता था अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए. द आउल विल डायरेक्ट हिम टू द विजार्ड who would go magic
and solve his problems and demand money in return. और विजार्ड क्या करता था कि उसको कुछ स्पेलिंग कुछ स्पेल्स करता था, मैजिक वर्ड्स स्पेल करता था, जैसे बोलते नहीं अपना मैजिक वर्ड बैंड लिया, आबरा कडाबरा टिम्बकटू एंड दिस डू, ओके। तो इस तरीके से वो कुछ वर्ड्स को बोलता, उस मैजिक बैंड को घुमाता और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती एनिमल की। फिर उसके बाद उसकी एक खासियत थी कि जो एनिमल जाता था उसके पास जितने पैनिज होते थे, पैनिज क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्राइस, कि छोटी सी अमाउंट होती थी कि जितने उस बच्चे के उस एनिमल के पास होते थे उससे ज़्यादा की डिमांड करता था। अब मान लीजिए उसके पास 2 pennies हैं तो ही विल डिमांड फॉर 3 pennies. फ्रॉम वेयर डिड ही ब्रिंग, देन ही directed by the wizard. Roger would be short of money and go to a well as directed by the wizard. जादूगर उसको बताता था एक वेल, एक कुआं, और उसके पास उसको डायरेक्शन देता कि वो वहाँ जाए और जितने पैनीज उसको चाहिए उतने उसके राउंड लगाए, उसको वो पैनीज वहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद वो वहाँ से मनी लेता एनिमल और वो वहाँ से लाकर विजार्ड को पे करता। दैन वो ही रिटर्न टू द फॉरेस्ट, टू द वुडलैंड एंड प्ले विद द एनिमल्स विद हैप्पीनेस। उस जाकर वो बाकी जानवरों के साथ खेलता खुश होकर, और शाम को ही वुड बी हैप्पी टू हैव हिज प्रॉब्लम सॉल्व एंड प्ले विद हिज फ्रेंड्स हैप्पीली। हिज फादर वॉज रिटर्न बाई ट्रेन एंड फैमिली वुड हैव अ डिलीशियस डिनर। जब उसके फादर ट्रेन से वापस आते बोस्टन से तो वो घर वापस जाता उनके आने से पहले, और शाम का भोजन वो लोग डिनर जो था वो एक साथ मिलकर एंजॉय करते। सो दिस वॉज द थीम ऑफ द स्टोरी। ऑल स्टोरीज ऑफ जैक, सभी की सेम कहानी होती थी, सेम एंडिंग होती थी। तो यही होती थी, सिर्फ क्या होता था उसमें चेंज, एनिमल बदल दिया जाता था, नेम सेम रहता था, थीम सेम रहती थी, ओके। दादे अब सेकंड पार्ट में हम क्या बताएंगे कि अब जो किस कहानी को सुनाने जा रहा है इस सैटरडे, जैक जो को जो कहानी सुनाएगा वो कहानी क्या है। दैट डे जो wants it to be a Roger Skunk's story। उस दिन जैक जो है वो किसकी कहानी सुनना चाहती है, रोजर स्कंक की। जब उसके फादर ने पूछा कि अच्छा बताओ आज आप किसकी कहानी सुनोगे, तो रोजर नेम तो सभी का होता था, आगे वो एनिमल को चेंज कर देता था। तो उसने कहा, तो उसको सजेस्ट कौन करती है, जो सजेस्ट करती है कि स्कंक, आज स्कंक की कहानी सुनेंगे। शायद उसने स्कंक जो है वो अपने किसी नर्सरी बुक में उसने पढ़ा होगा, उसकी स्टोरी या सुनी होगी। तो हु स्मेल्स वेरी बैड। अब जैक उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है अपनी कहानी में वो क्या था कि वो जो रोजर स्कंक था उसमें बहुत गंदी बदबू आती थी, स्मेल आती थी। ही वॉज स्टंकी एंड दैट इज़ वाई नो अदर एनिमल वॉन्ट्स टू प्ले विद हिम। यही कारण था कि कोई भी एनिमल उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। दे विल टीज हिम सेइंग स्टिंकी स्कंक। और जैसे ही वो जंगल में उनके साथ खेलने जाता तो उसे देखते ही सारे चिल्लाने लगते, ऊआ करके, छी स्टिंकी स्कंक आ गया, स्टिंकी मीन्स गंदी स्मेल वाला स्कंक आ गया, और वहाँ से सब लोग भाग जाते। और जो स्कंक जो था, रोजर स्कंक, वही खड़ा रह जाता और उसकी आंखों में से मोटे मोटे आंसू टपकने लगते। और जिस समय वो जब जो जैक उसको कहानी सुना रहा है तो जो कि जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होते हैं। जैक का मेन पर्पज क्या है स्टोरी में, वो अपनी बेटी की ग्रोथ को भी देख रहा है कि उसका माइंड ग्रोइंग हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके माइंड में डेवलपमेंट हो रहा है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी जो इंटरेस्ट है वो भी चेंज होता जाता है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो चेंज होते जाते हैं। तो वो स्टोरी के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप करती है, ठीक है, और उसके अलग अलग तरीके से जो फेस एक्सप्रेशन है वो भी चेंज होते रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, वो सब चीज़ें जैक नोटिस करता है। जब जैक ने ये बताया कि इसका जो है वो खड़ा रह जाता है, रोने लगता है, तो उस समय उसके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। होठ जो है बच्चे से रोने लगता है ना, बच्चा रोते वक्त होते हैं, वैसे ही उसके वो भी अपने होठों को उसी तरीके से रुआ सा जिसे कहते हैं बना लेती है, अपने होठों को आगे की तरफ निकाल लेती है, और उसके जो पैर हैं टेंशन से वो भी मूव करते हैं, वो उनको अपने बिस्तर में लेटे लेटे हिलाती है, ठीक है। सो ऑल्सो स्टार्ट्स, हाँ, रोजर वुड क्राई, रोजर रोने लगा। एट दिस पॉइंट जो स्टार्ट्स फीलिंग कनेक्टेड विद द करेक्टर
एंड शी ऑल्सो स्टार्ट्स क्राइंग, जो भी अपने आप को उससे कनेक्ट कर लेती है, उस क्रिएचर से, उस एनिमल से, और शी ऑल्सो स्टार्टिंग टू क्राई, वो भी रोने लगती है। जो इंसिस्ट ऑन सेंडिंग रोजर स्कंक टू द आउल, और फिर वो अपने फादर को सजेस्ट करती है कि जो रोजर स्कंक को कहाँ जाना चाहिए, आउल के पास जाना चाहिए। शी इंसिस्ट ऑन सेंडिंग रोजर स्कंक टू द आउल। दिस रिएक्शन ऑफ जो सरप्राइजेज हर फादर, उसके जो रिएक्शन था, देयर वाज सम चेंजेस इन हर रिएक्शन, सो हर फादर वाज surprised to see the reaction of his daughter that she is growing day by day, धीरे धीरे वो बड़ी हो रही है, and he realizes the changes in the growing child. Finally the owl directs Roger Skunk, and Roger Skunk went to the owl, and what does the owl suggest? The owl directs Roger Skunk to the wizard. और आउल का क्या काम था, वो कहाँ डायरेक्ट, किसके लिए डायरेक्ट करता था, विजार्ड के पास, स्कंक को विजार्ड के पास भेजता है। एंड ही गेट्स द स्मेल ऑफ रोजेस, और वो अपनी ही पसंद से कि स्मेल रोज को प्राप्त करता है। विजार्ड ने जब उसके पूछा कि आप किस स्मेल को चाहते हो, तो उसने रोज की बताई, तो उसके अंदर रोज की स्मेल आने लगती है। अ हैप्पी स्कंक रन्स इनटू द वुड्स, और स्कंक जो था खुश होकर जंगल की तरफ भाग जाता है। आफ्टर गेटिंग द पेनीज फ्रॉम द वेल, 3 पेनीज थे उसके पास, 3 पेनीज की उसे डिमांड की गई थी, जो कि उसके पास नहीं थे। तब उसने आउल ने उसको विजार्ड ने उसको सजेस्ट किया कि वो वेल उस डायरेक्शन में जाए, वहाँ पर एक वेल है, उसके राउंड लगाए, जितनी उसको पेनीज चाहिए, और वहाँ से वो लेकर आता है इस रोजर स्कंक। वो उसको विजार्ड को देकर जंगल में जाता है। सारे एनिमल्स जो उससे भागते थे, दूर भागते थे, वो उसके साथ खेलते हैं खुश होकर। ऑल एनिमल्स गैदर अराउंड स्कंक एंड दे ऑल प्ले गेम, सभी उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और शाम तक उसके साथ खुश होकर खेलते हैं। एंड इन द लास्ट स्टेज ऑफ दिस स्टोरी व्हाट हैपन, सो इसके बाद मोस्टली कहानी का एंड हो जाता है। उसकी सारी कहानियाँ जैक की जो थी वो फादर के घर आने पर और साथ में डिनर शेयर करने के बाद कहानी का एंड हो जाता है। लेकिन इस कहानी में जैक ने कहानी का एंड इस तरीके से नहीं किया, वहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट था। क्या था? व्हेन स्कंक रीचेज होम हिज मदर इज एंनोयड, जैसे ही स्कंक अपने घर पहुँचता है उसकी मदर जो है वो नाराज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे अपने बच्चे की वही जो रियल स्मेल थी, जो स्टिंकी स्मेल थी, वही पसंद थी। ठीक है, तो वो एकदम से चिल्लाने लगती, इतनी गंदी स्मेल का मतलब उसे रोज की स्मेल गंदी लगी, उसे अपने बच्चे की स्मेल अच्छी लगती थी, तो उसे गुस्सा होती है, डजंट लाइक द स्मेल, उसे वो स्मेल लाइक नहीं करती। शी टेक्स हिम बैक टू द विजार्ड, और उसको वापस विजार्ड के पास ले जाती है रोजर स्कंक को, एंड हिट्स हिम ऑन द हेड, और जाकर विजार्ड मतलब अपना अम्ब्रेला लेकर जाती है, विजार्ड के सर पर हिट करती है, उसको मारती है और उसे कहती है कि तुम वापस इसकी स्मेल वापस लाओ। तो वो अपने जादुई शब्दों को बोलकर उसी तरीके से जादू से वापस उसमें वही गंदी स्मेल फिर से ला देता है। एंड ऑर्डर्स हिम टू रिस्टोर स्कंक्स अर्लियर स्मेल, जो डजंट लाइक दिस, जो को बिल्कुल पसंद नहीं आता कहानी में इस तरीके की एंडिंग, जो एकदम से चिल्ला पड़ती है। जो उसका फादर कहता है ना कि उसकी मदर जो जाके शी हिट्स द विजार्ड दैट शी डजंट लाइक इट, उसको जो डजंट लाइक इट एट ऑल, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और शी अपोज हिज हर फादर, अपने फादर का अपोज करती है। शी डजंट लाइक इट, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। शी इज़ एंग्री एट द बिहेवियर ऑफ रोजर्स मदर बिकॉज शी वॉज एंग्री विद द बिहेवियर ऑफ रोजर मदर हु चेंज द गुड स्मेल ऑफ हर चाइल्ड इनटू बैड स्मेल, क्योंकि उसने अपने बच्चे की अच्छी स्मेल को फिर से गंदी स्मेल में चेंज करा लिया था। She wants the wizard to hit Roger's mummy. What does Jo want? जो क्या चाहती है? जो चाहती है that wizard should hit the Roger skunk's mummy. मम्मी को नहीं, मम्मी को नहीं, मतलब उसकी मदर को विजार्ड को हिट नहीं करना था, बल्कि विजार्ड उसकी मदर को हिट करे, उसकी मदर को मारे कि उसने गलत काम क्यों किया, क्यों उसने रोजर की स्मेल चेंज करा दी। भाई बच्चे किस फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हैं कि वो कि एक अच्छी सी स्मेल आए ताकि सब लोग उसको लाइक करें, सब बच्चे उसके साथ खेलें।
तो जो यही चाहती थी कि वो अपनी उसी आर्टिफिशियल स्मेल में आ जाए ताकि जंगल के सारे एनिमल उसके साथ खेल सकें. जो आर्ग्यूज विद बट her father disagrees and defends Skunk's mother, saying mothers are always right, but her father wants to aware her with the truthness of the life, with the truthness of a mother. लेकिन उसके फादर उसको किस बात से अवेयर कराना चाहते थे कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, फैक्ट से. वो कहते हैं वो उससे डिसएग्री थे. जो चाहती थी ही वॉज नॉट एग्री विद हर. एंड बिकॉज ही डिफेंड्स स्कंक्स मदर, क्योंकि वो स्कंक्स की मदर की डिफेंड कर रहे थे, वो उनका फेवर ले रहे थे. दैट ही वॉज सेइंग दैट स्कंक्स मदर वॉज राइट, स्कंक की मदर बिल्कुल ठीक है. शी वॉज बिकॉज मदर्स आर ऑलवेज राइट, मदर्स हमेशा सही होती हैं. बट जो इज एडमेंट एंड एंग्री, जो वॉज एडमेंट वो बहुत ही जिद्दी थी और गुस्से में थी. शी डजंट लाइक एट ऑल दिस एंड she was forcing her father that he had to change the end of the story. He will hit the mother with the rod, with the magic band. Jo argues with her father, but he exerts his authority as the storyteller and doesn't change it. लेकिन वो बिल्कुल भी उसको स्टोरी को चेंज नहीं करते. And so finally Roger Skunk comes back home with his mommy. Gradually other animals get used to his smell and start playing with him. And finally Jack told her that all the other animals of the woodland, other animals of the forest except skunk in his bad smell. वो जो जानवर थे, दूसरे जानवर जो दूर भागते थे, वो स्कंक को उसी बैड स्मेल में उसको स्वीकार कर लेते हैं. एंड दे स्टार्टेड टू प्ले विद हिम विद हिज रियल स्मेल. उसकी जो वास्तविक स्मेल थी उसी को एक्सेप्ट करके उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं. जो वापस स्कंक वापस अपनी मदर के साथ घर आता है, उसकी मदर उसको प्यार करती है और शाम को उसके फादर के बोस्टन से लौटने के बाद वो लोग रात का डिनर आपस में मिलकर बैठकर करते हैं. और उसके बाद ये जो स्टोरी का एंड हो जाता है. इस स्टोरी में जैक जो है वो अपनी बेटी को रियलिटी से अवगत कराना चाहता है. ही वॉन्ट टू टेल हर दैट अ मदर लाइक हर चाइल्ड इन हर रियल पोजिशन, इन हर रियल फिजिकल कंडीशन. शी डजंट लाइक एट ऑल एनी आर्टिफिशियलिटी इन हर चाइल्ड. कोई भी माँ अपने बच्चे के किसी भी आर्टिफिशियलिटी को लाइक नहीं करेगी. वो अपने बच्चा जैसा भी है, चाहे वो काला है, चाहे वो गंदा है, वो उसी को वैसे ही गले से लगा लेती है. आपने खुद देखा होगा, आप जब छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं वो मिट्टी में गिर के गंदे होकर आते हैं, लेकिन माँ अपने गंदे बच्चे को भी गले से लगा लेती है, चाहे वो काला है, चाहे वो गोरा है, चाहे उसमें फिजिकली कोई भी डिफेक्ट है. बट मदर लाइक्स हर चाइल्ड इन हिज ओन पोजिशन. सो व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस? जो disagrees and refuses to sleep. Jack forced her to sleep and he was not accepting the end of the story according to Zoe. She wants another story in which mommy is hit. She wants that he will tell him another story to her in which wizard will hit the mommy. But Jack refuses and threatens and orders her to sleep. But Jack refuses. He forbid. वो मना कर देता है कि नहीं, और उसे कहता है और उसे थ्रेटन्स मीन्स उसको धमकी देता है क्या उसे कहानी और सुननी है अपने फादर से या नहीं. अगर सुननी है तो उसे ऑर्डर देता है कि ठीक है जाके तुम चुपचाप सो जाओ. ही इज़ इन अ डायलेमा बिकॉज ही नोज दैट हिज प्रेग्नेंट वाइफ इज़ वर्किंग एंड एट दिस टाइम ही वॉज इन डायलेमा. वो एक दुविधा में था कि वो क्या करे. एक तरफ बच्चों को उसको संभालना है, दूसरी तरफ उसकी वाइफ जो है उस कंडीशन में प्रेगनेंसी में काम कर रही है, पेंटिंग कर रही है. तो ही वॉन्ट टू हेल्प हर alone and he must help her. He feels trapped and uneasy. इस समय वो अपने आप को बहुत ही अनईजी फील कर रहा है, लग रहा है जैसे वो किसी पिंजरे में, किसी जेल में फंसा हुआ है. Caught in a difficult situation means all the situation were looking him difficult. This was a
लाइफ मतलब एक ऐसी सिचुएशन में आदमी आता है जिस समय कुछ है, मतलब हर तरीके की हेल्प चाहता है। एक तरफ बच्चों को भी संभालना चाह रहा है, दूसरी तरफ अपनी वाइफ की भी हेल्प करना चाहता है। इस समय उसके समय पास ये डायलेमा है कि वो क्या करे, बच्चों को अकेला छोड़े या वाइफ को अकेले। बच्चे छोटे हैं तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, तो उसके पास ऑप्शन क्या बचता है कि पहले वो अपने बच्चों को सुलाए, उसके बाद वो अपनी वाइफ की हेल्प करे। और स्टोरी में एंड में यही होता है कि उन बच्चों के सो जाने के बाद वो अपनी वाइफ के पास जाता है, बट तब तक वो भी थक चुका होता है और उसकी वाइफ भी पूरी तरीके से थकी हुई है। तो इस तरीके से इस स्टोरी का एंड होता है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो यूजुअली इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है। So these are the most important questions, which are long questions from the chapter. First question is, why did Joe disapprove of Jack's ending of the story of Roger Skunk? How did she want to end? ये मैंने अभी लास्ट में बताया था कि जो क्यों अपोज करती है स्टोरी में, स्टोरी के एंड को चेंज करने के लिए, बिकॉज शी वॉज अ स्मॉल चाइल्ड एंड who lives in a fantasy world. They don't want any problem in their life. They want to live in a fantasy. They don't know what is right and wrong. नहीं जानते छोटे बच्चे कि क्या सही है क्या गलत है, उन्हें तो जो चमक रहा है वही अच्छा लगता है। तो हाउ डिड सी want it to end, और वो कैसे स्टोरी का एंड चाहती थी, आपको भी लास्ट स्टेंजा में बताया था। सी wants that there should be some change in the story. Wizard should hit the mummy and he should change the bad smell of the skunk into rose smell. Okay. So and next question, a child's standpoint invariable is different from that of an adult. ये क्लियर है कि बच्चे और एडल्ट दोनों के व्यूज़ में, दोनों के आइडियाज़ में वेरिएशन होता है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। बच्चा इनोसेंस होता है, स्मॉल होता है, ही हैज़ नो एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ, वाइल एडल्ट हैज़ एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ एंड दे हैव देयर व्यूज़, दे हैव देयर आइडियाज़। उनके अपने व्यूज़ होते हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बच्चों का अपना होता है। जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द स्टोरी, शुड विजार्ड हिट मम्मी। आप इस स्टोरी के माध्यम से इस स्टेटमेंट को मतलब क्लियर करेंगे। आप अपने भी इसमें व्यूज़ दे सकते हैं कि एडल्ट और बच्चों की थिंकिंग में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या वेरिएशन होते हैं, ये आप लोग बेटर जानते हैं। हाउ डिड जो वांट द रोजर स्कंक स्टोरी टू एंड, व्हाई? ये सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म चेंज हो गया, इसका आंसर भी वही होगा जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आई थिंक आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।